اطلاع کریں گے آپ کو کہ کچھ دیر پہلے آئی پی پی کی ترجمان فردوس عاشقوان ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کی جانب سے استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کے قائد نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کیا, نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا, ظاہر کیا گیا. بجٹ مفاد عامہ کی ترقی کے لیے رکھا گیا ہے. 30 سے 40 افراد کو بھرتی کیا گیا, 800 اکاؤنٹس کھولے گئے, نوجوانوں کا برین واش کر کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا. ہمارا دنیا بھر میں وقار مجروح ہوا, جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا یہ پبلک فنڈ تھا. فردوس عاشقوان نے اب سے کچھ دیر قبل یہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تقریباً 870 ملین روپے سے سوشل میڈیا ٹیموں کو بھرتی کیا گیا. 2021 سے پہلے 800 میں سے 72.5% اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے حامی نہ تھے. آئی پی پی کی ترجمان فردوس عاشقوان نے اب سے کچھ دیر قبل یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ بجٹ میں ظاہر کیا گیا تھا, مفاد عامہ کی ترقی کے لیے رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ 30 سے 40 افراد کو بھرتی کیا, 800 اکاؤنٹ کھولے گئے. انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کا برین واش کر کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا, ہمارا دنیا بھر میں وقار مجروح ہوا, جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ بلیک فنڈ تھا. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاریاں ہوئیں تو انکشافات ہوئے. سابق صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا یہ چاہتے ہیں, یہ جو تمام تر الزامات بھی لگائے گئے ہیں, پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں واضح بھی دی گئی ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں چونکہ آپ بھی پی ٹی آئی کے حصہ رہے ہیں, پی ٹی آئی ممبر رہے ہیں, آپ نے کیا یہ سب چیزیں دیکھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں رہا, میں پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں رہا, میں پی ٹی آئی کا 5 سال وزیر اطلاعات پنجاب رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کا 15 سال میڈیا پرسن رہا ہوں. میرا آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں ساری یہ جی. اور میں 2 دفعہ منسٹری سے پنجاب کے اندر اترا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ سوشل میڈیا کے وہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ مجرم, میں لفظ یوز کروں گا اس وقت پاکستان کی ریاست کے مجرم, جبران الیاس, عمران غزالی ڈپٹی ہیڈ ان کا مرکزی, اور اسلان خالد اور اظہر مشوانی, یہ 4 کا ٹولہ تھا جو 25-25, 30-30 ہزار آگے دے رہا تھا ان سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو, اور خود لاکھوں اور کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے انہوں نے بازار گرم کیا ہوا تھا کے پی کے میں, پنجاب میں اور وفاق میں. 2 دفعہ انہوں نے مجھے اتارا کہ میں ان کے رستے کی رکاوٹ تھا. 2 دفعہ انہوں نے اس میں سے اتارا کہ میں نے پنجاب کے اندر 2,500-3 ہزار انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیسنٹ جناب بچوں اور بچیوں کی میں نے ایک ٹیم بنائی سوشل میڈیا کی, اور انہیں سختی سے منع کیا کہ آپ نے کسی صحافی کو کہ جو تنقید کرتا ہو, کسی جرنلسٹ کو, کسی اینکر کو کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتا ہو, آپ نے نیگیٹیولی بیہیو نہیں کرنا, کسی قسم کی غیر اخلاقی ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ, کوئی ٹویٹ نہیں کرنی. تو انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ شکایات لگائیں کہ یہ ہمارے مقابلے کی سوشل میڈیا ٹیم جناب یہ لا رہے ہیں, اور پھر ان کو پتا تھا کہ ان کا ایجنڈا ناکام ہو رہا ہے. 2 دفعہ انہوں نے مجھے وزارت سے, بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ میں سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا اچھے انداز سے کہ صرف پنجاب حکومت کی ڈپارٹمنٹ منسٹریز کی جو اچیومنٹ تھی اور پرفارمنس تھی صرف ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بریک ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ, اور یہ ایک پری پلانڈ ایجنڈا تھا. اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے 2018 دسمبر میں اس کا فیصلہ ہوا, لیکن اصل امپلیمنٹیشن 2021 کے اینڈ میں ہوئی, اور 2 سال کے لیے 87-88 کروڑ پہ رکھا گیا. یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب میں دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری پاکستانی عوام کو. بنیادی طور پر جون کے مہینے میں 2021 جون کو چیئرمین تحریک انصاف کو پتا چل گیا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے, اب وہ حکومت رک نہیں سکتی. انہوں نے پھر پری پلانڈ کے پی کے اور پورے پاکستان کے اندر یہ کوئی 20-25 ہزار نوجوان تھے, وفاق میں بھی, سندھ میں بھی, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی ان کی اپنی ٹیمیں تھیں. انہوں نے یہ سارے ہائر کیے, ان کو تنخواہیں دی سرکاری پیسوں سے, ٹھیک ہے جی, اور کے پی کے میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. دوسری دفعہ جب میں اترا ہوں تو جناب اس کے بعد انہوں نے سارا کنٹرول اظہر مشوانی اور اسلام خالد کے ہاتھ میں کیا پنجاب کا. وہاں پہ بھی سینکڑوں ہزاروں نوجوان بھرتی ہوئے ہیں, اور وہاں پر پھر پری پلانڈ 2 سال پاک فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, زہر گھولا گیا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جتنی ملک دشمن عناصر تھے خصوصاً اسرائیلی موساد اور انڈین را, اور اس کے علاوہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی, ان کے بندے اس میں شامل ہوئے, اور انہوں نے پھر سونے پہ سہاگا وہ پھڑکا لگایا پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جناب سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف, جو آپ نے اور پوری پاکستانی قوم نے پچھلے 2 سالوں میں آنکھوں دیکھا ہے.
ठीक है चौहान साहब, ये जिक्र आपने कर दिया है, तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल बता दी, अपनी भी हमारे चैनल के तवज्जुह से भी आपने बता दिया। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये पब्लिकली फंड जिसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको कैसे देखा आपने? और ये चीज़ अगर आपको मालूम थी पहले, मैं ऐसी जनरली बात करना चाहूँगा, अगर ये चीज़ मालूम होती है किसी को तो वो पहले से क्यों नहीं डिस्कस की जाती? अगर ये चीज़ आपके नॉलेज में पहले थी, आप इत्तलात के वज़ीर रह चुके हैं, तो ये पहले से इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? मैंने आपको बताया कि असल तो इन्होंने जहर घोलना शुरू किया है तकरीबन कोई फरवरी 2022 से। उससे पहले तो इनके फौज के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ और बाकी चीजें तो बड़ी इनकी स्मूथली बजारन जा रही थी। अंदर तो पता था लीडरशिप को तकरीबन जून 2021 से कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, लेकिन पब्लिकली तो जनाब फरवरी में पता चला जब तहरीक अदम एतमाद आई। तो जनाब उस वक्त तो सारे कंट्रोल और मामला तो इन लोगों के हाथ में थे, मेरे पास तो नहीं था, मैं तो वजीर जेल खाना जात था। मुझे तो नहीं पता था कि ये इस वक्त क्या क्या चीजें जनाब इत्तलात के डिपार्टमेंट के अंदर और मिनिस्ट्री के अंदर हो रही हैं। हाँ, जब हम तर्जमानों की मीटिंग में बैठते थे तो 2-3 दफा मेरे सामने पूछा असलान खालिद से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, कि भाई वो जो हमने सैकड़ों हजारों नौजवान भर्ती किए हुए हैं पेड, उनकी क्या एफिशिएंसी है, उनकी क्या प्रोफिशिएंसी है, उनका क्या जनाब आउटपुट है। तो उधर से फिर ये चीजें थोड़ी सी पता चली कि हाँ यार, कुछ पेड भी केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर इन्होंने जनाब ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली रखे हुए हैं, और पैसे जनाब पंजाब और केपीके के अंदर आपके एडीपी में से जाया करते थे। और केपीके का स्कैंडल आपने अभी ब्रेक किया हुआ है। 87 करोड़ रुपया 2021-22 और 22-23 2 सालों के लिए रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज जो पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के माथे का झूमर है, उनको खिलाफ जहर उगलने के लिए, और उस पाक फौज के खिलाफ जो आज से 15 दिन पहले इंटरनेशनल फौजी मुकाबले में उसने दूसरी पोजीशन ली है पूरी दुनिया में, बरतानिया में हुआ है ये इंटरनेशनल फौजी मुकाबला, उस फौज के खिलाफ नफरत जरा सी बात पे लोरा लाई का कोई हो गया, चित्राल का कोई हो गया, कोई आपका जनाब एयरलिफ्ट कोई लिफ्ट का कोई वाकया हो गया, जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर का वकुआ हो गया, कोई चीज होती थी, ये बेगैरत जितने जनाब ये 4 बंदे मैंने आपको करवाए हैं ना, ये मेन इंसानों को इस्तेमाल करके ये फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ ये जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब बताइएगा कि ये जो तमाम तर सिस्टम था, क्या आप इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा समझते हैं? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये केपीके में बुनियादी तौर पे केपीके में था। पंजाब के अंदर 2021 से ये स्टार्ट हुआ और उस वक्त मैं वज़ीर इत्तलात नहीं था, मुझे उतार दिया गया था। दूसरी दफा इन्होंने ही उतरवाया था। इसी जबरान इलियास जो इनका सोशल मीडिया का इस वक्त भी हेड है, इमरान गजाली डिप्टी हेड है, दोनों अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है और दोनों अमेरिका में बैठे हुए हैं, और असलान खालिद और अजहर मशवानी। दूसरी दफा भी इन्होंने इसी वजह से उतरवाया था कि मैं ये वाली चीजें जो चलाना चाह रहे थे और इसमें जो पैदागिरियां करना चाह रहे थे, आप सारे टीवी चैनल इस वक्त ये एक इशू चला तो रहे हैं, लेकिन इसमें असल इशू ये है कि ये 4 बंदे और फिर फैसल जावेद और इफ्तिखार दुरानी और 2-3 बंदे और हैं, इन्होंने 2013 से लेके 2023 तक केपीके के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में और पंजाब के अंदर भी वक्तन जब ये मुझे उतारने के बाद जब ये कंट्रोल इनके हाथ में था, इन्होंने करोड़ों रुपए की लूटमार की है, करोड़ों रुपए की, खसूसन केपीके में। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से और कानून नाफिज करने वाले अदारों से मुतालबा करूंगा कि ये फौरी तौर पर इन सारों को गिरफ्तार करें, जो बाहर बैठे हैं उनको इंटरपोल के जरिए से लाए, और फिर केपीके का 10 साल का पूरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कट्टा छट्टा खोले। ये तो एक प्रोजेक्ट है ना, इस तरह के 70 प्रोजेक्ट हैं जो अरबों रुपए इस पे फैसल जावेद ने लूटमार की है, खानपुरानी ने लूटमार की है। ठीक है, ये जो 4 नाम इत्तलात तो ये भी आ रही है फयाज साहब, आपने जो 4 नाम लिए हैं, आप जिनका ताल्लुक केपी से भी बता रहे हैं, लेकिन इत्तलात तो ये भी आ रही है कि ये सारे लोग जो है पंजाब में मौजूद रहे हैं, बल्कि लाहौर में रहे। नहीं, इनका केपीके से ताल्लुक नहीं है, ये चारों केपीके से तो इनका लेना देना ही नहीं है, लेकिन केपीके इनके अंडर किया हुआ था चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। ठीक, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया टीम का हेड है जबरान इलियास, सही, डिप्टी हेड है इमरान गजाली। तो अब ये लोग कहाँ हैं? आप बता रहे हैं कि आप अभी ये कह रहे हैं कि अब ये लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अमेरिकन नेशनलिटी है इनके पास, वहाँ चले गए। पाकिस्तानी नहीं है, ठीक, सिवाय वो अजहर मशवानी के। अजहर मशवानी 30,000 की तनख्वाह पे आज से 4 साल पहले गवर्नर हाउस में जनाब आया था, 30,000 की तनख्वाह पे, लेकिन इसी गैंग के साथ मिलके और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एजेंडे को जी हजूरी कर करके, 2 नंबरी कर करके जनाब वो फिर ऑल इन ऑल बन गए। यही असलान खालिद का एटीट्यूड है, उसका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से मिसेज इमरान खान का जनाब
ताबेदार, वो कई आपकी ऑडियोज आ चुकी हैं। तो इनको इस्तेमाल किया गया, इन सबको, और इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और आवाम का और रियासत पाकिस्तान के पल्ले कख नहीं छोड़ा है। ठीक है चौहान साहब, एक तो ये पॉइंट आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बताया कि आप इनकी परेशानी का बाइस बन रहे थे इनके लिए। वो परेशानी का बाइस क्या बन रहे थे, एक तो ये, और दूसरी जानिब ये कि पंजाब में आपने सियासी ओहदा भी संभाला है, सरकारी ओहदा भी संभाला है। अगर आगे चल के पंजाब की कोई सूरत हाल निकल के ऐसी सामने आती है तो क्या आप उससे अपने आप को बरी जमा करेंगे? मैंने आपको बताया है कि जो मेरा दौरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर रहा है ना, ठीक बिल्कुल, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, ये चीज सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब राजा जहांगीर साहब थे, महबूब भट्ट थे मेरे साथ शुरू में, उन्हें अच्छी तरह पता है। मैं अल्लाह पाक के करम से बाय बर्थ जनाब मेरा ब्लड ग्रुप पी पॉजिटिव है, पाकिस्तान पॉजिटिव, और पाक फौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से मोहब्बत करने वाला पैदाइशी मेरा सारा खानदान, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे कजन, मेरे रिश्तेदार जनाब अपनी जान हथेली पर रख के पाकिस्तान फौज की खिदमत कर रहे हैं। और मेरा इस वक्त मेरा बेटा पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे रख के। मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता कि मेरे होते हुए कोई बंदा फौज के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोई बात हरकत भी करे। यही चीज तो इनको पसंद नहीं थी, इसी वजह से तो 2 दफा मुझे उतारा गया है कि यार मैं वहां पे वो स्टाइल इनके नहीं चलने दे सकता था, ना मैंने देना था, इन्होंने मुझे उतरवा दिया। बाकी उसके बाद फिर तूफाने बदतमीजी। ठीक है चौहान साहब, आपसे अब इस पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट से भी गुफ्तगू करेंगे, दस्तावेजात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक तो पहले ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट्स और तमाम जितने भी तशहीर की जाती थी अपनी पॉलिटिकल स्टेट को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल दस्तावेजात भी हैं जिसमें उस पर भी आपसे इस पर एक सवाल बनता है, वो भी करेंगे। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसको कंट्रोल करना पीटीए का काम है, आप क्या समझते हैं इसको कंट्रोल ठीक तरीके से नहीं किया गया? आप करवा सकते थे जब आप बैठे हुए थे इस वजारत के ऊपर? नहीं, पीटीए मेरे अंडर नहीं था, वफाक के अंदर था, और वफाक के जो वजीर इत्तलात थे वो 1 नंबर का जनाब 2 नंबर आदमी था। ठीक है ना, ये भी सुन रहे, 1 नंबर का 2 नंबर आदमी था। ठीक है, और वो डबल गेम कर रहा था, बल्कि ट्रिपल गेम कर रहा था। वो आलमी ताकतों के साथ भी जनाब उसने अपनी जनाब इची बिची बुलाई हुई थी, जिसकी वाज़ेह सबूत जनाब मौजूद है। किस तरह अमेरिकन एम्बेसडर उसके घर आके उसकी बीवी के साथ जनाब फोटो बनवा रहे हैं। ठीक है, जो काम करना चाहिए था वफाकी इदारों को कि वो कान खींच के रखते हैं इन चीजों पे, पीटीए से लेके बाकी आपके पैमरा से लेके बाकी, ये आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जिनसे आपके अच्छे कोलीग थे और अच्छे आपके साथ कांटेक्ट्स रहते थे उनके? और यार सारी दुनिया को पता है यार उसका, वो जो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब वो टूटा हुआ रस्सा से होता है ना कि खांड का, तो वो भागे थे पुलिस को देख के। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो जहन में आता रहा, आप कह रहे हैं कि फौज से आप मोहब्बत करते हैं, हम भी फौज से मोहब्बत करते हैं। जानना ये चाहते हैं कि 9 मई के वाक़ये तक का इंतजार क्यों किया गया? फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी बाद में पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया, आपने भी किया, बीच में आपको मुश्किलात भी रही। एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, आपने कहा था कि इमरान जो पीटीआई चेयरमैन है उन्हें मिलना भी छोड़ दिया था आपसे, तो इतनी देर क्यों की? मैं इसका जो आपकी इत्तला के लिए है, इस वक्त भी मेरे पाकिस्तान की आवाम से मेरी गुजारिश है कि मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, फौरन जाके मेरी फेसबुक और मेरे ट्विटर को खोल लें। अभी भी पिछले साल मार्च से लेके और 9 मई तक हर महीने मेरे ट्विटर पे, मेरी फेसबुक पे, मेरी इंस्टा पे कम से कम 2 या 3 पोस्ट होती थी पाक फौज के शोहदा, पाक फौज के जवान और अफसरों की कुर्बानियां और पाक फौज की अचीवमेंट को खराज तहसीन पेश करने की पहली चीज। यही तो मेरे खिलाफ जनाब पिछला आखिरी साल जो था ना, जब मुझे खुडे लाइन लगा दिया और मुझे कोर्ट कमेटी से भी फारिग कर दिया पिछले साल जून में, उसकी वजह ये थी ये फवाद चौधरी और मसरत चीमा की तरह के जनाब ये करैक्टर, एक्टर और फैक्टर ये खान को मेरी ये पोस्टें दिखाते थे, यार असी केड़े और पासे जा रहे हैं, ये चौहान किसी और पासे जा रहे हैं, अभी जनाब फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने जा रहे हैं, ये फौज से मोहब्बत पैदा करने की कैंपेन पे है। जनरल सरफराज शहीद हुए, तूफान बदतमीजी मचाया गया पूरी सोशल मीडिया पे, इसी जबरान इलियास और इसी इमरान गजाली और इसी अफसान खालिद और अजहर मशवानी की जेरे जनाब क़यादत और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेरे सरपरस्ती और फवाद चौधरी और मसरत चीमा की जेरे सरपरस्ती। उस वक्त मैं जनरल सरफराज को खराज तहसीन पेश कर रहा था, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी और आपकी जनाब इंस्टा पे भी। फिर जनाब लाहौर और पिंडी के आप अपने आज टीवी के सहाफ़ी को बुला लें जो बीट रिपोर्टर है, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस वक्त जब खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ बोल रहा होता था, मैं फौज के हक में बात कर रहा होता था कि हमारा फौज से कोई झगड़ा नहीं है, हमारी जंग पीडीएम से है और हमारी जंग सियासी है। तो जनाब हमने दामे दर में सुखने किरदार अदा किया, 16-17 साल की एफिलिएशन थी, मारें खाई हुई थी, पर्चे छीले हुए थे पीपल्स पार्टी और खुसूसन नून लीग के खिलाफ,
एक वक्त गुजारा हुआ था, लेकिन जब देखा कि चीज नहीं है तो अल्लाह पाक के करम है सबसे पहले बाहर निकल के 5 महीने से फ्रंट फुट के ऊपर इनकी साजिशें पे नकाब कर रहा हूँ। कोई और पीटीआई का नहीं कर रहा, ठीक, तो सारे छुपे हुए बैठे हुए अपने घरों में। ठीक, आपकी बात हमने सुनी, आपने भी हमारे सवालात का बड़े तहम्मुल से फयाजुल हसन साहब वक्त में जवाब दिया और तमाम चीज़ें हमें डिटेल से समझाई भी। आपके वक्त का फयाज साहब बहुत शुक्रिया। फयाजुल चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि ये कौन इसका जिम्मेदार है और इसको क्यों इस्तेमाल किया गया और इसकी वजूहात क्या थी। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब, ये तमाम चीज़ें अब सामने हैं, अब यकीनी तौर पे इसको यूँ भी कहा जाए कि अपने अपने दामन झाड़ दिए हैं सब ने और बातें सब सामने आ रही हैं, अब सारे राज अफशा हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? दामन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके दामन पे लगे दाग वो सबको नजर आ रहे हैं और आपके सवालात में वो जो चुभन थी वो वही दाग हैं, क्योंकि यही लोग थे जो उस बयानिए को प्रमोट करने के लिए, ये 2013 का आपने खुद जिक्र किया और उन्होंने भी जिक्र किया, चौहान साहब ने भी, कि 2013 से ये मामला चल रहा था, तो ये भी तो उस मामले का हिस्सा थे। फिर उसी बयानिए में 2014 भी आया, फिर उसी बयानिए में 2016-17 में यही लोग थे डिफेंड करने वाले ना। यही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा बड़े एहतराम के साथ आज जो बात कर रही थी, ये कैबिनेट मीटिंग में जो तहम्मुल की बात किया करते थे उनको तनकीद का निशाना बनाकर खान साहब से कहा करती थी कि देखें ये तो अपनी पुरानी दोस्तियां निभा रहे हैं, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो नदीम अफजल चंद साहब को ले लें, वो तर्जमान थे पीटीआई चेयरमैन के जब वो वजीर आजम थे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इन सब को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ये जो चौहान साहब कह रहे हैं ना कि 2021, ये 2021 का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है। ये ट्रोलिंग 2021 से नहीं शुरू हुई, ये तो बहुत पुरानी शुरू हुई। ये जो जिस तरह से जाली अकाउंट्स बनाए गए ये 2021 से तो नहीं बने, ये जब ये दोनों साहिबान, एक साहिबा और एक साहिब पंजाब में भी थे दोनों, और मरकज में तो एक वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम होता रहा। लेकिन उस वक्त चूंकि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था ये सारे, और वो जो प्रोपोगेंडा था या जो ट्रोलिंग थी, जो दूसरों को मलाइन करना था, उसको पेट्रनेज हासिल थी और वो काम चलता रहा। अब जाकर ये तो बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बाहर बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं, और अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने 2-3 बंदों के नाम लिए जो कि यूएस नेशनल हैं और बाहर बैठकर वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही अनफोल्ड होंगी चीजें, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जो 800 मिलियन की आप बात कर रहे हैं, इट्स नथिंग, इट्स अ पीनट। प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया गया। इस हवाले से आगे चलकर फिर भी राब्ता करेंगे, बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। आईपीपी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया अकाउंट्स को पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से दस्तावेजात सामने लाई गई और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया।